Dear student, welcome to Ayush Academy. I have a notification for you. आयुष एकेडमी में वनडे क्लासेस, यूपी पीसीएस, टीजीटी और पीजीटी, एमए इंग्लिश, बीए इंग्लिश की क्लासेस रन कर रही हैं। एज यू नो दैट, जैसा कि आपको पता है, टीजीटी और पीजीटी की क्लासेस पूर्णिमा मैम संचालित कर रही हैं और शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ आदि अथर से संबंधित जितने भी प्लेज और उनके वर्क्स हैं वो मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, those who are desirous to attend my lecture, they are most welcome to Ayush Academy. Today I am going to teach you very famous tragic play of William Shakespeare known as Julius Caesar. Here some questions arises in front of the students concerning to this play जूलियस सीजर। जूलियस सीजर किस टाइप का प्ले है? डियर स्टूडेंट्स, जूलियस सीजर इज a रोमन प्ले। दिस प्ले इज नोन एज अ रोमन प्ले। यह प्ले रोमन प्ले के नाम से जाना जाता है। वाई इज दिस? बिकॉज when it was the period of 44 BC, at that time the democracy of Rome was some different. That is why the wars going on. यहाँ पर रोम और पॉम्पी के बीच युद्ध हो रहा है। Why is this? Because there is rivalry between Rome and Pompey. रोम और पोम्पी के बीच प्रतिद्वंद्विता थी। They were enemy to each other. ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। And here, Julius Caesar is the bravest general of Roman army. That is why Julius Caesar went to Rome with a piece of army. After Julius Caesar went to Pompey, not Rome, I am so sorry. Julius Caesar went to Pompey with a piece of army, so that the war started between Rome and Pompey. As a result, Julius Caesar defeated Pompey. Julius Caesar ने Pompey and his sons both were defeated by Julius Caesar. Julius Caesar ने Pompey और उसके पुत्रों को हराया। It was a great task of Julius Caesar. It was a heroic deed of Julius Caesar when he defeated Pompey. After defeating Pompey, Julius Caesar brought a lot of wealth like golds, diamonds and some other precious metals from Pompey. When he brought this from there, then he deposited this wealth in the government treasury of Rome. जब जूलियस सीजर पॉम्पी को हरा करके आता है तो वहां से वह ढेर सारा धन संपदा लाता है और उस सारी धन संपदा को he deposited in government treasury. As a result, the people or the citizens of Rome became very glad to welcome Julius Caesar. Julius Caesar का स्वागत करने के लिए all the Romans gathered there, on which way the chariot of Julius Caesar was passing
the citizens of the Rome, they had given up their works, usual works, and they are standing in both the sides of the road to see Julius Caesar, and so that they could do the warm welcome of Julius Caesar. जूलियस सीजर का भव्य स्वागत करने के लिए लोग खड़े थे, कुछ लोग दीवारों पर चढ़ गए थे, कुछ लोग पेड़ की डालियों पर बैठे थे और कुछ लोग उसका स्वागत करने के लिए रास्ते में खड़े थे। मेनी पर्सन्स वर वेरी हैप्पी, ढेर सारे लोग अत्यंत प्रसन्न थे जूलियस सीजर का स्वागत करने के लिए। इसी बीच Julius Caesar was gathering in a big field. Julius Caesar was going in a big field where there the citizens of Rome gathered there. Where a lot of people were gathering there. On that spot, Casca was there. Casca वहाँ था. Casca and Cassius both are the villain of this play. कैसियस और कास्का ये दोनों इस प्ले के विलन हैं। When Julius Caesar was welcoming, at that time Antony was also there. Here Antony is the friend of Julius Caesar. Antony Julius Caesar का close friend. When Julius Caesar was welcoming in front of the great mob, at that time the people of the Rome, they offered the crown of the Rome 3 times. रोम के लोगों ने जूलियस सीजर को 3 बार रोम का राजा बनने के लिए कहा। But Julius Caesar avoided this 3 times one by one. Julius Caesar said that I do not like to be the king of Rome. I want to serve my country as the general of Rome. This is the greatness of Julius Caesar. ये जूलियस सीजर की बहुत बड़ी महानता थी, लेकिन ऐसे महान लोगों को भी षड्यंत्रकारियों के जाल में फंसना ही होता। कैसियस एंड कास्का इन्वेस्ट जूलियस सीजर, कैसियस और कास्का सीजर से जलते थे। दैट इज वाई दे डिडंट लाइक, इसलिए वे इस बात को पसंद नहीं करते। देन कैसियस एंड कास्का वेंट टू द हाउस ऑफ ब्रूटस. They wrote a letter and went there. They wanted to convince Brutus in the favor of themselves. When even Brutus was very, very close friend of Julius Caesar. Brutus Julius Caesar का एक बहुत close friend होता है। कैसियस और कास्का जूलियस सीजर की इस बढ़ती हुई ख्याति से बड़े ही परेशान थे। वे नहीं चाहते थे जूलियस सीजर की पॉपुलैरिटी बढ़े। As a result, they wrote a letter and dropped the letter into Brutus' house. इन्होंने एक पत्र लिखा, इस पत्र को ब्रूटस के घर में गिरा दिया। When Brutus read the letter, in that letter it was written, Julius Caesar wanted to be the dictator of Rome. They wrote all the things just opposite and against Julius Caesar. कैसियस और कास्का ने उस स्वागत समारोह में जो बातें हुई थी, उन बातों को न पेश करके उसे तोड़ मरोड़ करके गलत साबित किया, झूठा पत्र लिखा। उस पत्र में इन्होंने लिखा कि जूलियस सीजर वांटेड टू बी द डिक्टेटर ऑफ रोम एंड ऑल द वेल्थ व्हिच ही ब्रॉट आफ्टर डिफीटिंग पॉम्पी's son, he did not deposit single coin in the government treasury. Julius Caesar used all the diamond, gold, silver and all the precious metal. After reading the letter, Brutus thought that Julius Caesar wanted to become the dictator of Rome when even Brutus was too patriot. जबकि ब्रूटस एक सच्चा देशभक्त था, वह देश को बर्बाद होते हुए देख नहीं सकता था। उसके देश को बर्बाद करने वाला भले ही उसका मित्र जूलियस सीजर ही क्यों न हो, उसे मरना हो। ये सारी चीजें ब्रूटस ने तय कर ली। दैट इज वाई ब्रूटस कलेक्टेड some of the conspirators with Cassius and Casca and went to the Senate house. ब्रूटस ने कुछ लोगों को वहाँ इकट्ठा किया, अपने साथ षड्यंत्रकारियों को। वह सीनेट हाउस जाता है। सीनेट हाउस जाने के बाद उसने
सीजर को बुलावा भेजा कि सीजर आए और उसका स्वागत किया जाएगा सीनेट हाउस में। इट वॉज द डे ऑफ 15th मार्च, यह 15 मार्च का दिन था व्हेन जूलियस सीजर वाज मर्डर्ड, जब जूलियस सीजर की हत्या हो गई। और 14 मार्च की रात में वाइफ ऑफ जूलियस सीजर, शी वाज कैलिफोर्निया, जूलियस सीजर की पत्नी जो कैलिफोर्निया होती है, उसकी सा अ फियरफुल ड्रीम, उसने भयानक स्वप्न देखे थे कि माय हस्बैंड सीजर वाज मर्डर्ड एंड द फाउंड ब्लड्स ऑफ फाउंटेन coming through his body and spreading all over, and the greatest Romans were washing their hands in the blood. This dream was very fearful. यह स्वप्न बहुत ही भयानक था जिसे सीजर की पत्नी कैलिफोर्निया ने देखा था। When Caesar got ready to go to the Senate house to meet Brutus and some other senators, at that time California came in front of Julius Caesar. She caught hold of the feet of her husband and said that I am requesting you, don't go out today. कैलिफोर्निया कहती है अपने पति के पैर पकड़ लेती है, कहती मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आज आप घर से बाहर न निकलें क्योंकि हमने भयानक स्वप्न देखा है, मैंने आपकी हत्या का स्वप्न देखा। इतना सुनने के बाद सीजर कहता है ये सब सारी चीज़ें बकवास हैं, वी शुड नॉट बिलीव ऑन इट, हमें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन at the request of California, Caesar got ready to stay at home. कैलिफोर्निया के अपनी पत्नी के आग्रह पर सीजर घर रुकने का निर्णय कर लेता। But what a pity, Cinna came. Here we have two Cinna. One is a politician and second is a soothsayer. Soothsayer means भविष्य वक्ता, भविष्यवाणी करने वाला। The Cinna, the soothsayer, it was the man of Brutus and conspirators. He went to Caesar's house. After going there, Cinna said, Caesar, why are you sitting? The senators are calling you, so that they were highly desirous to do your warm welcome. सिन्ना ने कहा कि आपका भव्य स्वागत करने के लिए सीनेट हाउस में बुलाया जा रहा है। तो सीजर ने कहा कि आई विल नॉट गो आउट फ्रॉम दिस हाउस टुडे, मैं आज इस घर से निकलने वाला नहीं क्योंकि मेरी पत्नी ने मना किया। सिन्ना कहता है कि सीजर, यू आर ब्रेव, तुम स्त्रियों की बातों में आ गए, तुम्हें सब नहीं सोचना, तुम्हें घर से बाहर जा, कैसे पुरुष हो तुम, क्या तुम्हारा पुरुषत्व तो समाप्त हो गया? सीजर को अभिमान हो गया। सीजर डिमांडेड द रोब्स, रॉयल रोब्स, सीजर ने अपने वस्त्र मांगे। वस्त्र मांगने के बाद ही सेट आउट। व्हेन इवन हिज वाइफ फॉरवर्ड हिम, बट सीजर सेड टू हिज वाइफ, listen California, Caesar is dangerous, Caesar is more dangerous than danger. Caesar spoke in this play like God. Caesar अपने आप को ईश्वर के समक्ष समझता था, वह ईश्वर की तरह बोलता था। उसने कहा, listen California, Caesar is more dangerous than danger. This is very famous line. This line can be asked in TGT and PGT examination. सीजर कहता है कि सीजर खतरे से भी खतरनाक है, सीजर का कोई सामना करने वाला नहीं है। उसने कहा, सुनो कैलिफोर्निया, अगर दो शेर, दो रीछ अगर मेरे सामने खड़े हों, मेरा रास्ता रोके हों, तो सीजर उनका भी सामना करेगा और आगे बढ़ेगा। सीजर डरपोक नहीं है, सीजर इज नॉट अ कावर्ड, सीजर कायर नहीं हो सकता, सीजर जाएगा। फिर क्या था, सीजर सीनेट हाउस को जाता है। जैसे ही सीजर सीनेट हाउस को जाता है, पहुंचते ही सीनेट हाउस में क्या होता है, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है फ्लावियस। फ्लावियस नाम का एक कैरेक्टर है जिसके भाई को सीजर ने अपने अधिकारों का, लीगल अधिकारों का उपयोग करके उसे तड़ी पार कर दिया था। व्हाट डू यू मीन बाय तड़ी पार? तड़ी पार क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो अपराधी प्रवृत्ति का हो, जो जनपद में, क्षेत्र में रह करके तरह तरह की हत्याओं को, अपराधों को जन्म देता हो और ऐसे वारदात को अंजाम देता हो, उसे तड़ी पार कहते हैं। ऐसे व्यक्ति पर सरकार मुकदमा चलाती है, उसे 5 साल 10 साल के लिए आउट ऑफ
कंट्री कर देती है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कर देती है, आउट ऑफ एरिया कर देती है, इसे ही हम तड़ी पार कहते हैं। तो फ्लेवियस के भाई को तड़ी पार कर दिया गया था। इसे ही ब्रूटस ने एक ग्राउंड बनाया। ब्रूटस ने क्या किया, अपने सारे कॉन्स्पिरेटरों को डैगर के साथ, तलवार के साथ एक कमरे में रख दिया और कहा एक एक करके जाओ और सीजर से कहो कि फ्लेवियस के भाई को बुला ले, उसकी तड़ी पार की सज़ा को कैंसिल करो। एक एक करके सारे सीनेटर्स, कॉन्स्पिरेटर्स सीजर के पास जाते हैं। सीजर नहीं मानता, किसी की बात सीजर नहीं मानता। अंत में फ्लेवियस जाता। तो फ्लेवियस जब जाता है तो सीजर से कहता है कि मेरे भाई के आदेश को आप कैंसिल कर दो। सीजर कहता है कि नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इफ सीजर ऑर्डर्ड एनीथिंग he cannot draw back his sentence. Go away from here, otherwise I will kick you like a dog. तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें कुत्ते की तरह मारूंगा। इतना सुनना ही था कि एक एक करके सभी कॉन्स्पिरेटर्स आते हैं। आफ्टर कमिंग दे स्टक द स्वॉर्ड वन बाय वन टू सीजर। एक एक करके सारे कॉन्स्पिरेटर्स अपनी अपनी तलवारें सीजर के शरीर में डाल देते हैं और चारों तरफ से रक्त के फव्वारे निकलने लगते हैं, जैसा कि कैलिफोर्निया ने अपने स्वप्न में देखा था। फिर क्या हुआ, एट लास्ट ब्रूटस केम। अंत में ब्रूटस आता है एंड ब्रूटस आल्सो टूक आउट हिज डैगर एंड स्टक फॉर्सिबली। इन दिस वे व्हेन सीजर सा हिज क्लोज फ्रेंड ब्रूटस, जब सीजर ने देखा कि उसका अपना गहरा मित्र, घनिष्ठ मित्र ने उस पर डैगर से, तलवार से वार किया, और इसी की प्लान है कि वन बाय वन सारे लोग आते हैं, सीजर को मारते हैं। सीजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीजर ने कहा धोखा। सीजर कहता है एट यू टू ब्रूट। सीजर अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहता है एट यू टू ब्रूट। अरे ब्रूटस, तुम भी, आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड सच अ कॉन्स्पिरेसी लाइक दैट। मैंने ऐसी कॉन्स्पिरेसी की अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी। ब्रूटस, तुमने ऐसा। विद दैट सीजर डाइड। इसी के साथ सीजर मर जाता है। और जब सीजर मर जाता है, डेड बॉडी ऑफ द सीजर वाज ब्रॉट ऑन अ पल्पिट। डियर स्टूडेंट, पल्पिट मीन्स अ टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म विच इज नोन एज इन हिंदी चबूतरा। पल्पिट एक प्रकार का प्लेटफॉर्म होता है जिसे हम चबूतरा कहते हैं। सीजर के डेड बॉडी को एक चबूतरे पर रखा जाता है और उसी समय सीजर का एक दाहिना हाथ, राइट हैंड, क्लोज फ्रेंड एंटनी भी आ जाता है। एंटनी को देखते ही सीजर ब्रूटस, कैसियस, कास्का ये निर्णय लेते हैं इसे भी मार दो और इसी के बगल में इसे सुला दो। और एंटोनी इस चीज़ को समझ गया कि अगर मैं वहाँ गया तो मैं मारा जाऊँगा। लेकिन एंटोनी जाते ही उसने अपना तरीका बदल दिया। उसने कहा सीजर को मरना था, वह उसी लायक था। नाउ आई एम इन योर साइड ब्रूटस। ब्रूटस, मैं तुम्हारे पक्ष में और मैं ये सिद्ध करूँगा कि सीजर क्यों मरा, किस लिए मरा। तो ब्रूटस कहता है ठीक है, लेकिन पहले तुम नहीं बोलोगे। फर्स्ट आई विल डिलीवर माई लेक्चर, आफ्टर दैट यू कैन। पहले मैं अपनी स्पीच दूंगा, उसके बाद तुम दोगे। ब्रूटस कहता है देशवासियों, माई डियर रोमन्स, आई किल्ड सीजर बिकॉज सीजर वांटेड टू बी द डिक्टेटर ऑफ रोम। एज ए ट्रू पैट्रियोट, I don't like Caesar or anybody else who can be the patriot, who can be the dictator of this country. Caesar defeated Pompey and his sons, and he brought a lot of wealth from there, but he didn't deposit one of the single coins in the government treasury. He used it all. That is why I have killed him. इसलिए मैंने इसे मारा, यह मरने लायक था, इसे मरना ही था। सीजर ने जब इतनी बात कही, ब्रूटस ने जब इतनी बात कही, तो विद दैट ब्रूटस, कैसियस, कास्का वेंट अवे फ्रॉम देयर। इट वाज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एंटोनी। एंटोनी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। ब्रूटस के जाते ही सीजर कहता है माय डियर रोमन्स, लिसन टू मी। सीजर इज द हीरो ऑफ दिस कंट्री। यू आर ऑल द प्रूफ ऑफ माई स्टेटमेंट। आप सभी मेरे इस कथन के प्रूफ हैं। When Caesar defeated Pompey's son, when he brought a lot of wealth from there, at that time
we are offering the crown of Rome 3 times to Caesar, but what a pity, Caesar avoided this one by one 3 times. Caesar was one of the best general of Roman's army. He said that I will serve this country well as a general, but I don't want to be a king. All the statements of the Brutus is false. ब्रूटस के सारे स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं. ब्रूटस गलत है, ब्रूटस गलती पर है जिसने सीजर की हत्या की है. मैं आपसे अपील करता हूं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सीजर की मृत्यु का बदला लिया जाना चाहिए. हम सभी सिटीजन्स को एक होना होगा और ब्रूटस से बदला लेना होगा. आफ्टर हियरिंग दिस, ऑल द सिटीजन्स ऑफ द रोम टर्न्ड इन द फेवर ऑफ एंटोनी एंड सीजर इन द प्लेस ऑफ ब्रूटस. It was bad luck of Brutus that he speeches first and Antony speeches last. ये ब्रूटस का जो हाल था, जो पहले स्पीच दिया और वहाँ से चला गया. It was good luck of Antony that he speeches last and stay remain that place. All the citizens of Rome took a torch which is known as मसाल. जलती हुई मसाल लेकर के सारे के सारे सिटीजन्स ब्रूटस के घर गए. When he went, Portia was very beautiful and good woman of her husband Brutus. पोर्सिया का एक अच्छा किरदार है, वह एक अच्छी युवती थी. पोर्सिया अपने पति को बार बार समझाती है कि वह सीजर के साथ ऐसा ना करे, लेकिन ब्रूटस ने अपनी पत्नी पोर्सिया की बात नहीं मानी. When we are going to compare पोर्सिया एंड कैलिफोर्निया, अगर हम पोर्सिया और कैलिफोर्निया की बात करें, डियर ऑडियंस, यू कैन सी दैट पोर्सिया इज द वाइफ ऑफ ब्रूटस एंड कैलिफोर्निया इज द वाइफ ऑफ जूलियस सीजर, द ट्रैजिक हीरो ऑफ दिस प्ले. तो हियर पोर्सिया इज अ प्रैक्टिकल लेडी व्हेन इवन कैलिफोर्निया इज नॉट प्रैक्टिकल. पोर्सिया इज नॉट बिलीविंग इन सुपरस्टिशन व्हेन इवन कैलिफोर्निया इज बिलीविंग इन सुपरस्टिशन. कैलिफोर्निया वॉज चाइल्डलेस. सीजर की पत्नी कैलिफोर्निया चाइल्डलेस है, उसके पास एक भी संतान नहीं है. शी बिलीव्स दैट इफ एंटोनी टच्ड हर इन द होली रेस ऑफ द हॉर्स, देन कैलिफोर्निया वुड एबल टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड. दिस इज अ ग्रेट सुपरस्टिशन, बट सच टाइप्स ऑफ सुपरस्टिशन वाज नॉट इन द कैरेक्टर ऑफ पोर्सिया. शी वाज द नोबल वाइफ. पोर्सिया एक अच्छी योग्य पत्नी थी, लेकिन सीजर की पत्नी कैलिफोर्निया उसके बराबर योग्य नहीं थी. तो जब सारे के सारे सिटीजन्स ब्रूटस के घर की ओर मसाल जलती हुई लेकर दौड़ते हैं, ब्रूटस भाग जाता है. भागते भागते ब्रूटस को जान बचाने के लाले पड़ गए. भागते भागते ब्रूटस फिलिप्पी के मैदान में जाता है. नाउ ही वांडर्ड टू एंड फ्रो. इसके बाद वह इधर उधर घूमता है, भटकता है, लेकिन वे सारे के सारे नागरिक ब्रूटस का बाल भी बाका नहीं कर पाते. आफ्टर द डेथ ऑफ जूलियस सीजर, इन द मिडस्ट ऑफ दिस प्ले, द सीजर्स स्पिरिट अराइव्ड. यानी जैसे इस प्ले का मध्य बिंदु आता है, मध्यांतर होता है, वैसे मरा हुआ सीजर जो होता है, उसके बाद सीजर की आत्मा, सीजर का भूत, सीजर का गोस्ट इस प्ले में अपीयर होता है. Dear student, listen to me very carefully. Dead Caesar is more powerful than living Caesar. The ghost of Caesar was powerful than living Caesar. Caesar का भूत मरे हुए सीजर से, जीवित सीजर से ज़्यादा शक्तिशाली था. That is why the dead Caesar or the ghost of the Caesar or the spirit of the Caesar dominates one by one the whole character and whole play, like Cassius, Casca, Cinna, Clavius, Marulus and Brutus also. यानी सीजर की आत्मा, सीजर का भूत अब थोड़े समय बाद, इस प्ले के मध्य के बाद